and respect all teachers and all my friends. And a warm welcome to our today's speaker, Gaurang Darji sir. We are thankful to sir to have taken out his precious time and come here to share his knowledge and expand our knowledge. Gaurang Darji sir has navigated the complex world of advertising and communication for 28 years, delivering his robust strategies for a diverse portfolio at brands from local business to multinational giants across sectors like FMCG, consumer goods, media, healthcare, and more. His professional history covers the full spectrum of brand engagement, including brand building, media management, digital communication, film production, and activation. The list doesn't end here. He is a strategist in high-stakes communication. Gaurang sir has leveraged his acumen in political arena, having worked with Mr. Shri Narendra Modi during his tenure as Chief Minister of Gujarat. He has developed several impactful election campaigns for the BJP Gujarat with mass audience in media landscape. He was a key member in highly successful and influential Sachivat, Bedadak and campaign for Divya Bhaskar. As a regular columnist for a leading vernacular newspaper, her considerably shared his unique perspective with a wide leadership. Overall, Gaurang sir is a dedicated thinker and communication expert who thrives on engaging with people and exploring the nuance of different communication styles, making interaction an opportunity for connection and understanding. Now, I'll hand over mic to my friend Purva, who enlightens us with the crux of articles written by Gaurang sir. Thank you, Vedant. Good afternoon, everyone. Most of the information about Gaurang Darji sir has been shared by Vedant. Still, I feel like sharing my side about sir and especially his articles. Gaurang Darji sir is a well-known person in Gujarati literature and journalism. He is widely recognized for his work as a communist with the leading Gujarati daily named Divya Bhaskar. Every Wednesday, his informative articles are featured in the newspaper supplement Kalash. One of his notable series is titled Oxygen has been particularly impactful. Sir has a rich professional background in advertising and communication with over 2 decades of experience. This blend of creative writing and professional expertise gives him a unique perspective that he brings to his article and novels. Thank you. दिव्य भास्कर ने जैसे बात किया, ठीक है, कड़श में वो लिखते हैं कॉलम, जिनके घर पे दिव्य भास्कर आता है वहाँ पर आज से बुधवार का पूर्ति देख लेना कड़श करके, वहाँ पर पेज नंबर 2. एंड गुड थिंग इज ही कीप्स थिंग्स वेरी सिंपल. छोटा सा हार्डली आई थिंक 1.5 मिनट का रीडिंग होगा. મને ગુજરાતી વાંચતા તો બધાને આવડે જ અને આવડવું જ જોઈએ. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, दूसरा होता ये कि भाई आप टीवी में हम लोग कॉमर्शियल ब्रेक्स देखते हैं ना, तो कॉमर्शियल ब्रेक में 10 या 20 सेकंड का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो एडवर्टाइजमेंट का जो मैसेज देना है, वो मैसेज का इम्पैक्ट कंपनी के बेनिफिट के लिए हो, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए हो, वो किस तरह से बनाना, दैट इज हिज जॉब. तो आप थोड़ा सा हमको सुनिए. एक एग्जांपल ये भी है, बात होना है कम्युनिकेशन का. नाउ व्हेन यू स्कोर गुड मार्क्स, दैट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग क्लियरली इन राइटिंग फॉर्म विथ योर एग्जामिनर. व्हेन यू आर स्कोरिंग नॉट गुड मार्क्स, दैट मीन्स देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन. घर में जो भी कुछ झगड़े होते हैं या फ्रेंड्स के साथ जो भी कुछ झगड़ा होना है, या जहाँ कहीं पर भी आपको लगे कि भाई इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस का जो बॉटम है, इफ़ यू लुक एट द बॉटम पॉइंट, इट इज ऑलवेज मिसअंडरस्टैंडिंग. एम आई राइट? अच्छा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह क्या है? इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन. बोले मैं तो ये कहना चाहता था, आप बोलेंगे मैंने ये समझा था, फिर वहाँ से शुरू होता है. So how to control that distortion of communication, how to communicate professionally, and how communication can ensure your success in the later life.
इसके बारे में हम लोग आज गौरांग सर से सुनेंगे। थैंक यू। Good afternoon, everyone. So, your two friends gave an elaborated introduction of myself. Rather, I would like to introduce myself in just 2 lines. First line, I am a man of mathematics, management, and mass communication. That's why I know the value of communication and I have learned how to manage it, right? So, as you know, that I am from an advertising background, and advertising is mostly known as the breaks between your loved sports event, your loved TV serial. तो बीच में break आता है and you would say अरे यार क्या advertising break आ गया. So I am belong to that क्या advertising break आ गया, right? So I would continue that breaks in my presentation also. You'll get some breaks in between the presentation also, but I'm sure you would like those kind of breaks, right? So today our communication would be in Khichdi language, right? So Khichdi means, you know that Khichdi has been considered as the superfood, right? Mixture of few things and then provide a lot of good things. So in communication, Khichdi language is mixture of languages which can communicate well. So it would be a Khichdi of English, Hindi and Gujarati. Because I would like to communicate well, right? So I would not stick to any one language. Which में हम लोग like we would explore Hindi, Gujarati, many things, right? So the subject is everyone likes me, right? So I am not talking about me, कि everyone likes me, because I know that everyone doesn't like me, because I am from an advertising field. तो काफी लोग होते हैं कि ये ad वाले I don't like them. But this is a dream, this is a desire of everyone. हम सब ये चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें. Am I right? No sound? Yes. Right? अब सबको ऐसा है कि लोग आपको पसंद करें. अच्छा, मैं अलग तरीके से बोलता हूँ कि आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, वो आपको अच्छा लगेगा, right? So this is all about how people will like you, how people will love you, और उसके लिए आपको क्या करना है, right? So let us start. So I have 2 faces. Whom do you like more between them? Narendra Modi, right? Next. Babar Azam? Rohit Sharma. So in both the cases, one person is Indian, another is a foreign face. So hopefully आप भारतीय हो तो Indian को like किया. Now I have 2 faces, both are Indian. Please. So यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, राइट? सो इनका लाइकिंग क्यों है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, राइट? नेक्स्ट प्लीज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू बी लाइक्ड? कि हमको ऐसा क्यों है कि लोग हमें पसंद करें, राइट? ये हमारी ऐसी पर्सनालिटी क्यों होनी चाहिए कि हम जहाँ भी जाए, वेदर इट इज अ स्कूल, इट इज अ सोशल फंक्शन, इट इज अ क्लासेस, जहाँ भी जाए हम लोग, कि लोग हमें पसंद करें कि हाँ ये लड़का या ये लड़की, शी इज गुड, अच्छा लगता है, अच्छा फ्रेंड है, गुड है. तो वो क्यों हम चाहते हैं? सो लेट अस सी द रीजन कि हम लोग क्यों चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, राइट? सो सी वी आर इन द सर्वाइवल मोड कि अगर हम लोग कोई भी ग्रुप में, कोई भी कम्युनिटी में, कहीं पे भी है, सो वेन एवर वी फील दैट पीपल आर लाइकिंग अस, सो वी विल फील सेफ. सी प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड, नॉट द वर्चुअल वर्ल्ड. वर्चुअल वर्ल्ड में जो लाइक्स का चक्कर था ऑन द सोशल मीडिया इज डाइड.
अभी हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं तो वो लाइक्स वाला गेम इज ओवर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड। सो रियल वर्ल्ड में आपके ग्रुप्स हैं, आपकी कम्युनिटीज हैं। सो व्हेन यू फील दैट पीपल आर लाइकिंग यू, सो यू वुड फील सेफ कि हाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। सेकंड इज द डोपामाइन इफेक्ट, कि आपको एक एक्साइटमेंट मिलता है कि whenever see you have dressed up well or you have performed well, you have scored well, और कोई आके आपको बोलेगा कि yes you have done it, तो जो आपको एक फीलिंग आती है कि yes I have done it, वो जो डोपामाइन इफेक्ट है, उसके लिए हम चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें, कि we want that kind of effect in our life, right? Third is social mirror. See, हम लोग like we keep on liking many people, कि हमें कोई फ्रेंड पसंद है, कोई कजिन पसंद है, कोई अंकल पसंद है, कोई आंटी पसंद है, बट हम लोग वो रेसिप्रोकेशन भी चाहते हैं कि जैसे मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ, क्या वो लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन अ गेम ऑफ एक्सचेंज ऑफ लाइकिंग। कई बार क्या होता है कि जो रिजेक्शन का एक पेन होता है, द सोशल पेन। सी रिसेंटली यू हैव कम अक्रॉस अ केस ऑफ किंजल दवे, कि द कम्युनिटी शी बिलोंग्स टू, वो कम्युनिटी ने कुछ बोला कि भाई इसको हम कम्युनिटी से बाहर निकाल रहे हैं। सो ऑल्दो किंजल इज अ सेलिब्रिटी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल शी टुक पेन एंड सोशल मीडिया पे मैसेज किया कि नो आई वैल्यू दिस कम्युनिटी, उससे मुझे बाहर निकाल दिया। वॉट एवर द केस के बारे में हम नहीं जानते, बट द काइंड ऑफ पेन जो एक ग्रुप से बाहर जाने का पेन होता है कि लोग हमें लाइक नहीं करते। मान लो कि आपका एक फ्रेंड सर्कल बैठा है, एक बंदा आ रहा है, तो हम लोग अगर उसको बोलते हैं यार ये कहाँ आ गया, बिकॉज वी आर नॉट लाइकिंग हिम, तो जस्ट थिंक फ्रॉम दैट पर्सन्स पर्सपेक्टिव कि उसको कैसा लगा होगा कि एक ग्रुप है तो मुझे अंदर एंटर नहीं करने देगा। सो वो सोशल पेन नहीं हो हमें, दैट्स वाई वी वॉन्ट कि लोग हमें लाइक करें। हम लोग हर ग्रुप में, हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में हम लोग इजीली एंटर कर सके, राइट? सो फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट, अगेन द सेम थिंग, कि हम लोग कोई अगर बाहर कर देगा तो हम लोग को पेन होगा कि हमें क्यों बाहर कर दिया। सी लाइकिंग से क्या होता है कि एक टीम बनती है। सी हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, सो जो भी करेंगे हम लोग साथ करेंगे, कि भी साथ पढ़ने बैठते हैं, साथ घूमने जाते हैं, साथ में हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, साथ में कुछ खेलने जाते हैं। सो बिकॉज वी लाइक ईच अदर, एक हमारा ग्रुप, एक हमारा टीम बन रहा है। सो वो लाइकिंग से क्या होगा कि वी वुड बी एबल टू मेक अ टीम, एंड टीम वर्क ऑलवेज विन, राइट? And the most important point is the image. See, everyone should be concerned about our image. कि आज तक कभी आप लोगों ने ऐसे सोचा है कि how do you be perceived among your peer group? कभी भी आपने अपने आप से ये पूछा है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं या कैसे मुझे रिफर करते हैं? See, every student, every person has some image. तो इमेज में कैसा है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, लोग बोलेंगे कि इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, कोई बोलेंगे कि इज वेरी नोटोरियस स्टूडेंट, कोई बोलेंगे कि इज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। सो हर एक का कोई ना कोई एक इमेज होगा। जिसका पॉजिटिव इमेज है उसको लोग लाइक करते हैं, जिसका नेगेटिव इमेज है उसको लोग डिसलाइक करते हैं। सो आप लोगों ने कभी ऐसे सोचा कि व्हाट इज योर इमेज, योर परसेप्शन इन योर पीयर ग्रुप? अगर नहीं सोचा है, आई एम श्योर आप लोगों ने, किसी ने ये नहीं सोचा होगा, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ लाइकिंग, लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट। सी वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ 80-20। 80-20 में कैसा होता है कि लाइक 20% पीपल सराउंडिंग यू, वो ऐसा होगे कि आप कुछ भी करोगे, आप 100 आउट ऑफ 100 लाओगे तो भी वो आपको लाइक नहीं करेंगे। सी यू माइट हैव एक्सपीरियंस कि अगर आपने 95% लाए हैं तो भी कोई तो ऐसा नेबर, कोई तो ऐसा रिलेटिव आएगा आपके घर पे और बोलेगा कि ठीक है 95, हमारा छोकरा ना तो 97 आ रहा है। सो आप कितना भी करोगे
वो ऐसे 20% लोग हैं जो आपको लाइक नहीं करेंगे, सो फॉरगेट देम, फोकस ऑन द रिमेनिंग 80% हु आर ओपन माइंडेड एंड हु आर विलिंगली लाइकिंग यू और हु आर विलिंग टू लाइक यू, कि आपके साथ मतलब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको लाइक करना चाहते हैं. फोकस ऑन दोज पर्सन. वो कैसे, वो कौन है, वो आइडेंटिफाई करना भी हम आगे सीखेंगे. राइट, नेक्स्ट प्लीज. सो यू आर लाइक बिकॉज ऑफ a very simple formula, 3 words: the way you look, the way you talk, the way you behave, or the way you perform. So the way you look, Ranbir Kapoor is more liked by a person than Nawazuddin because of his look. Narendra Modi because of his talks, and Rohit Sharma because of his performance. Right? So Mullah was very choosy about the audience. कि उनको लगेगा कि ऑडियंस है, रिसेप्टिव है, तो ही वो जाके बात करेंगे. तो ऐसा एक गांव में उनको बुलाया गया, उनको जाना पड़ा, मुल्ला पहुंचे. अगर मैं आपको कहूं कि आप लाइफ में 2 चीज ऐसी है जो हमेशा करते हैं, 1 सांस लेना, दूसरा कम्युनिकेशन करना. ये 2 चीज ऐसी है कि उसके बगैर आपका जीना मुमकिन नहीं है. So this is the importance of communication. Actually, it is the interaction between humans. Interaction, information का exchange बोलो आप, ideas का exchange बोलो, feelings का exchange बोलो, thoughts का, facts का, values का exchange बोलो. So it is basically exchange of certain things between 2 people, between multiple people, right? तो हम लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस है अच्छे कम्युनिकेशन का. राइट? सुबह उठे, आपको पता है कि आज एग्जाम है, तो सबसे पहले आपको मदर विश करेगी कि भाई चल जल्दी तैयार हो जा, फटाफट स्कूल पहुंच जा, आज तेरा एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक. आपको पता है कि आज संडे है, थोड़ा रिलैक्स करना है, आराम से उठेंगे, फ्रेंड को फोन करेंगे. सो योर ऑल द डे टू डे एक्टिविटीज, उसका जो फाउंडेशन है दैट इज कम्युनिकेशन. उससे ही पूरा आपका दिन जाता है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वेदर इट इज योर डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, एनुअल गोल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, कि आपको जो भी लाइफ में पाना है, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए. क्योंकि आप अगर आपने माइंड में सोच लिया है कि मुझे मेरे फ्रेंड से वो एक बुक है वो पढ़ने के लिए लेनी है, आपने माइंड में सोच लिया, बट आपने कम्युनिकेट किया ही नहीं, तो वो बुक कैसे देगा. सो आपको जो भी चाहिए. थर्ड इज लाइक इट इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 पर्सन. कि वो अंडरस्टैंडिंग बगैर कम्युनिकेशन के तो आएगा नहीं. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 पीपल, कम्युनिकेशन इज नीडेड. आइडियाज. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You're shaking your head, well I'll be shaking my ass, cause I'm born to dance. I wanna shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, yo. Watch me dance now.
सही है 14 के 14? Driti and Hridaya, so it's a small prize from me. Unfortunately, I have just one book. I will send across the second one. But till then, आप दोनों अभी दोनों के बीच में एक रखिए. Then I'll send across one more book. This is a book written by me, Communication. Many congratulations. आज इस रिपब्लिक डे इवेंट में स्पीच उसे देने बुलाया है जो खुद बात ही नहीं कर सकता। सब सोचते हैं जो बोल या सुन नहीं सकता वही साइन लैंग्वेज में बात करता है। गलत सोचते हैं। अब एक बात बताइए, आप में से किस किस को साइन लैंग्वेज आती है? किसी को नहीं? एक बात बताइए, जब हम मिलते हैं तो क्या करते हैं? नमस्ते। कोई दूर जाता है तो बाय। कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद आता है, किसी से गुस्सा करते हैं, किसी से प्यार जताते हैं, किसी की नजर उतारते हैं। हमारी हाँ में, हमारी ना में, हमारी वाह में, हमारी दुआ में हम सब इंडियन साइन लैंग्वेज ही तो बोलते हैं। कोई कम बोलता है, कोई थोड़ा ज्यादा, और हम यही बोलते हैं। अब बताइए, आप सब में से किस किस को साइन लैंग्वेज आती है? chosen विराट कोहली कि आपके लिए मैं नया हूं, हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आपने मेरे से इतना काफी कुछ सुना, आपको लगेगा कि ये सर ने कुछ बताया वो काम का था, कुछ नहीं काम का था। अब मुझे फॉलो करो ना करो, आप विराट कोहली को तो फॉलो करते हो। अब विराट कोहली की जो मैं बात करूंगा वो तो आप फॉलो करोगे ही। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट? अंडर 19 में जब विराट कोहली टीम में आए, ही वाज सच एन एग्रेसिव पर्सनालिटी कि वो हमने फील्ड पे भी देखा था, ऑफ फील्ड भी देखा था, हमने वो उनकी लैंग्वेज भी देखी थी। बट देन व्हाट हैपेंड? टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? व्हेन ही रियलाइज कि ये मेरा सेल्फ डिस्गस्ट हो रहा है, उसको मैं सेल्फ डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और एक मेंटालिटी शिफ्ट आया कि जो एग्रेशन है, एग्रेशन को उसने चेंज करके पूरा एक इंटेंसिफाई कर लिया कि मुझे एक ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ना है, वो एग्रेशन के साथ नहीं बढ़ना है, राइट? उसके बाद रिजल्ट क्या आया कि फ्रॉम अ स्टार प्लेयर टू ही बिकेम अ रिस्पॉन्सिबल लीडर। एज अ कैप्टन तो वो अच्छा खेले ही, बट कैप्टनसी के बाद भी बीच में एक ब्रेक एक आया कि जब उनको टीम से बाहर किया, कम मैचेस खिलाई, वापिस आए, आज भी आप देख रहे हैं कि वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज द लर्निंग? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो की लेसन्स क्या है फ्रॉम विराट कोहली केस? सो सेल्फ अवेयरनेस इज द पावर। सबसे पहले आप जानिए कि आपकी वीकनेस क्या है। विराट फाउंड आउट कि एग्रेशन उसकी वीकनेस है, उसने एग्रेशन पे काम किया। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपकी वीकनेस क्या है, उसको इंप्रूव करिए। सो सेल्फ अवेयरनेस इज पावर। सेकंड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज लाइफस्टाइल। सी स्कूल में आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे में आते हैं, पूरा वो 7-8 घंटे डिसिप्लिन में बिताते हैं, बट घर जाके क्या वही डिसिप्लिन कंटिन्यू रहता है? मोस्ट प्रोबेबली नो। सो डिसिप्लिन ऐसा है कि आप देखिए, आप आपके हार्ट को पूछिए
आपका हार्ट अगर ऐसा बताता है कि भाई मैं 1 घंटे के लिए सो जाता हूं, मैं वो जो डिसिप्लिन में बीट कर रहा हूं वो नहीं करूंगा, मुझे ब्रेक दे दे यार, 1 घंटे के लिए सो जाता हूं, चलेगा? सो डिसिप्लिन इज लाइक दैट कि आपको आपकी लाइफ के हर वक्त डिसिप्लिन वे में काम करना है। सी चैनल योर एनर्जी, आपके पास जुनून है, एग्रेशन है, कुछ करने की चाह है, वो अच्छा है, बट वो अच्छा तब है जब उसको एक ऑब्जेक्टिव मिले। एक पावरफुल वाटरफॉल होता है, बट वो वाटरफॉल से हम एनर्जी कब ले सकते हैं? जब उसको एक चैनलाइज किया हमने, पूरे वाटरफॉल से हमने तब जाके एक एनर्जी, अदरवाइज तो वो पानी ऐसे ही बह जाता था, बराबर। एंड कैरेक्टर ओवर इमेज, सी बिल्ड योर कैरेक्टर। इमेज अपने आप अच्छी हो जाएगी, अच्छी इमेज इज अ बाय प्रोडक्ट इफ योर कैरेक्टर इज गुड। आप कैरेक्टर से कितना स्ट्रांग हो, कितना रेजिलियंट हो, आप कितना पॉजिटिव हो, तो अगर आपका कैरेक्टर अच्छे से बिल्ड होगा तो आपकी इमेज अच्छी बननी ही है, राइट?